ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தேசிய தலைவர் மாயாவதி தற்போது சென்னை பெரம்பூருக்கு வருகை தந்திருக்கிறார். அவரது குடும்பத்திற்கு ஆறுதலை கூறி வருகிறார். அந்த காட்சிகளை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தேசிய தலைவர் மாயாவதி தற்போது பெரம்பூருக்கு வருகை தந்திருக்கிறார். அவரது குடும்பத்திற்கு ஆறுதலை தெரிவித்து வருகிறார். அந்த காட்சிகளை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பகுஜன் சமாஜ் தேசிய தலைவர் மாயாவதி தற்போது ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக பெரம்பூருக்கு வருகை தந்திருக்கிறார். அங்கு அவரது ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்து வருகிறார். அந்த காட்சிகளை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பெரம்பூரில் மாநகராட்சி பள்ளி வளாகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தேசிய தலைவர் மாயாவதி தற்போது பெரம்பூருக்கு வருகை தந்திருக்கிறார். முன்னதாக ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் குடும்பத்திற்கு அவர் ஆறுதல் தெரிவித்த அந்த காட்சிகளையும் நாம் பார்த்தோம். தற்போது அவர் அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக வந்திருக்கிறார். அந்த காட்சிகளை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். மேலும் பெரம்பூர் பகுதி முழுவதும் காவல்துறையினர் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது. அங்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பானதும் போடப்பட்டுள்ளது. ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக பகுஜன் சமாஜ் தேசிய தலைவர் மாயாவதி தற்போது அங்கு வருகை தந்திருக்கிறார். முன்னதாக ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் குடும்பத்திற்கு அவர் ஆறுதல் தெரிவித்த அந்த காட்சிகளையும் நாம் பார்த்தோம். தற்போது அவர் அங்கு அஞ்சலி செலுத்தி வரும் அந்த காட்சிகளையும் நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பகுஜன் சமாஜ் தேசிய தலைவர் மாயாவதி ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக தற்போது பெரம்பூருக்கு வந்திருக்கிறார். மாநகராட்சி பள்ளி வளாகத்தில் ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் உடலானது அஞ்சலிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது பகுஜன் சமாஜ் தேசிய தலைவர் மாயாவதி அங்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகிறார். அதனை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். முன்னதாக ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் குடும்பத்திற்கு அவர் ஆறுதல் தெரிவித்த அந்த காட்சிகளையும் நாம் பார்த்தோம். மேலும் அங்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பானது போடப்பட்டுள்ளது. பெரம்பூர் பகுதி முழுவதும் காவல்துறையினர் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. தற்போது அண்மை செய்தியாக நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பகுஜன் சமாஜ் தேசிய தலைவர் மாயாவதி ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக தற்போது மாநகராட்சி பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் உடல் வைக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் அஞ்சலி செலுத்தி வருகிறார். அதனை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். முன்னதாக பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தேசிய தலைவர் மாயாவதி தற்போது மாநகராட்சி பள்ளி வளாகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகிறார். அதனை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். முன்னதாக ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் குடும்பத்தினருக்கு அவர் ஆறுதல் தெரிவித்த அந்த காட்சிகளையும் நாம் பார்த்தோம். பகுஜன் சமாஜ் தேசிய தலைவர் மாயாவதி தற்போது ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார். அதனை நாம் பார்த்தோம். முன்னதாக அவர் பெரம்பூருக்கு வந்திருந்த அவர் தற்போது ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் தெரிவித்திருந்தார். அதன்பின் தற்போது ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி அந்த காட்சிகளையும் பார்த்தோம். மேலும் பல்வேறு தலைவர்களும் அங்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக வருகை தந்துள்ளனர். தற்போது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளமும் அங்கு இருக்கிறார். அந்த காட்சிகளையும் நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தேசிய தலைவர் மாயாவதி தற்போது ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக அங்கு வருகை தந்திருக்கிறார். முன்னதாக அவரது குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் தெரிவித்த மாயாவதி தற்போது ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் உடலுக்கு அவர் அஞ்சலி செலுத்திய அந்த காட்சிகளையும் நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். காவல்துறையினர் அங்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் உடலுக்கு பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தேசிய தலைவர் மாயாவதி அஞ்சலி செலுத்தினார். மாநகராட்சி பள்ளி வளாகத்தில் ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் உடலானது அஞ்சலிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பகுஜன் சமாஜின் தேசிய தலைவர் மாயாவதி அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக சென்னைக்கு வருகை தந்துள்ளார். முன்னதாக ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் தெரிவித்த மாயாவதி பின்னர் ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார். அதனை बहुत ज्यादा दुख हुआ है कि हमारी पार्टी के तमिलनाडु स्टेट के स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर के आर्मस्ट्रॉन्ग जो बहुत ही मिशनरी थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूवमेंट से जुड़े थे, लॉर्ड बुद्धा के जो संदेश हैं, जो उनका मानवतावादी जो उनका उपदेश रहा, संदेश रहा, उससे जुड़े हुए थे।
और जब उन्होंने पार्टी में काम करना चाहा तो एक ही पार्टी उन्होंने चयनित की, बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी में जब से वो जुड़े रहे हैं या जब से जुड़े हैं तो पूरी ईमानदारी निष्ठा से वो तमिलनाडु स्टेट में पार्टी का जनाधार बढ़ाने में पूरे जी जान से लगे रहे हैं। लेकिन इनकी जिस प्रकार से हत्या की गई है घर के बाहर, ये बड़ा सोचने की बात है। और इससे ऐसा लगता है यहाँ के प्रेसिडेंट की हत्या की गई है उनके घर के बाहर, तो उससे ऐसा लगता है कि आपके तमिलनाडु स्टेट में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और इतना ही नहीं, मुझे ये भी मालूम हुआ कि जिन्होंने हत्या की है अभी तक वो असली जो अपराधी है वो पकड़े नहीं गए हैं। केवल खाना पूर्ति के लिए कुछ कर लिए हैं, असली अपराधी अब नहीं पकड़े गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट को बहुत गंभीर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट का मामला नहीं है अकेले। पूरे तमिलनाडु स्टेट में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, वो बहुत भयभीत है, डरे हुए हैं कि जब बीएसपी के स्टेट के प्रेसिडेंट के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता है। ये बड़े गंभीरता से सोचने की बात है। इसलिए मेरा यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है, यहाँ के मुख्यमंत्री से खास तौर से, कि उनको लॉ एंड ऑर्डर तरफ ध्यान देना चाहिए और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनके सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से शाम के वक्त आकर इनकी हत्या की गई, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अब तक यदि सरकार गंभीर होती तो जो असली अपराधी अब तक पकड़े जाते, लेकिन असली अपराधी अभी तक नहीं पकड़े हैं। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट से ये चाहेंगे कि आप हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट रहे हैं वो नहीं हमारे बीच में रहे, तो आप न्याय नहीं देना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए, ताकि जो असली अपराधी हैं तो उनका असली चेहरा सामने आ जाए, ये मालूम पड़ जाए कि इसके पीछे हाथ किसका है। क्योंकि हमें कोई, हमारी पार्टी को कोई उम्मीद नहीं है यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हमें न्याय दे देगी। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे आदमी को न्याय मिले, दलितों को न्याय मिले, तो और उनका हाथ नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का, वो कहते हैं कि हमारा हाथ नहीं है, तो फिर आपको ये मामला सीबीआई को तुरंत रेफर करना चाहिए। और यदि स्टेट गवर्नमेंट रेफर नहीं करती है सीबीआई को तो समझ लो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं हाथ जरूर है, और नहीं है तो उनको सीबीआई को रेफर करना चाहिए ताकि ये मालूम पड़ जाए कि इसमें हाथ किसका है। इसलिए इस घटना को हमारी पार्टी ने काफी गंभीरता से लिया है और हमारी पार्टी कोई चुप नहीं बैठेगी, यहाँ हमारा यूनिट भी कोई चुप नहीं बैठेगा। स्टेट गवर्नमेंट पे पूरा दबाव बनाएगा कि आप यदि न्याय नहीं दे सकते तो सीबीआई को ये मामला रेफर करे। और इनके देहांत, इनकी जिस तरीके से हत्या की गई है, मृत्यु हुई है, हमारी पार्टी काफी दुखी है। हम इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं
और इस मौके पर उनके जो परिवार के लोग हैं, चाहने वाले जो लोग हैं, उनसे मेरी वो भी बहुत दुखी हैं, लेकिन कुदरत से मैं यही कामना करती हूँ कि कुदरत इस दुख को सहन करने की उनको शक्ति दे, मतलब, और हिम्मत और हौसले के साथ आप लोगों को जो भी दोषी लोग हैं, अपराधी लोग हैं, तो उनको सजा दिलवाने में आप लोगों को आगे आना चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना है। कानून व्यवस्था का पालन करते हुए आपको ये बताना है कि जो व्हीकल सेक्शन के लोग हैं वो कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेते। कानून व्यवस्था का पालन करते, कानून का जो शांति व्यवस्था के साथ कानून व्यवस्था सरकार इधर उसको सही ढंग से चला, वो मेंटेन करे या ना करे, कानून व्यवस्था का वो ध्यान रखे या ना रखे, लेकिन हमारी पार्टी चाहती है कि स्टेट में कानून व्यवस्था सही हो। और हम अपने स्टेट के प्रेसिडेंट को जो अब नहीं रहे उनको न्याय दिलाने के लिए हमारी पार्टी के लोग कानून को हाथ में नहीं लेंगे। शांति व्यवस्था के साथ आप अपनी बात स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखें, और मैं मीडिया के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को, यहाँ के मुख्यमंत्री को मैं ये चाहती हूँ कि यदि आपका इस घटना में आपका हाथ नहीं है तो फिर आप इस मामले को सीबीआई को जरूर रेफर करें, ऐसा मेरा उनको कहना है। और इस मौके पर मैं पार्टी की ओर से विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी उनके दुखी परिवार के साथ है, उनके पूरे परिवार का पूरा ध्यान रखेगी। और सरकार से भी मैं कहना चाहूंगी, जिस तरीके से इनकी हत्या की गई है तो इनका पूरा परिवार भी काफी भयभीत है, डरा हुआ है कि जब उनके साथ ऐसा हुआ है और उनको किस तरीके से काट के, मतलब उनकी मृत्यु की गई है, हत्या की गई है और उनकी मृत्यु हुई है, तो हम सरकार से चाहेंगे कि उनके परिवार को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, उनके परिवार को हर तरीके से उनकी मदद की जाए, स्टेट गवर्नमेंट मदद करे, सुरक्षा उपलब्ध कराए। और मैं फिर इस बात को मीडिया के माध्यम से कहती हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि लॉ एंड ऑर्डर की तरफ आप लोग ध्यान दें। जो दबे कुचले लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके साथ जुर्म जाति नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से ये घटना घटी है तो आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो, सरकार को गंभीर होना चाहिए और जो असली अपराधी है वो पकड़े जाने चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट को बेहतर यही है कि ये मामला सीबीआई को उनको रेफर करना चाहिए। आप लोग सब बहुत दुखी हैं, हमारी पार्टी बहुत दुखी है और परिवार के लोग भी बहुत दुखी हैं, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ऐसे में मेरा उनके साथियों से, पार्टी के लोगों से यही कहना है, तो जिस हिम्मत और हौसले के साथ वो जी जान से इस पार्टी मूवमेंट को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहे, तो आप लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो उनको भी, जिधर भी, अभी मैं तो अंधविश्वास में ज्यादा यकीन नहीं रखती, लेकिन जो उनकी काम करने की जो उनकी चाहत थी, गरीब और मजलूमों की मदद करने की, एक एडवोकेट होने के नाते भी गरीबों की वो बहुत मदद करते थे, फ्री में उनका केस वगैरह देखते थे, गरीब होते थे, उनकी आर्थिक मदद करते थे। तो बहुत ही सुशील नेचर के, मानवतावादी नेचर का उनका व्यक्तित्व था। तो इसलिए उनके जिस तरीके से हत्या की है, हमें बहुत ज्यादा दुख है, पार्टी को बहुत ज्यादा दुख है। आप लोग शांति बनाए रखें और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान दें और जो दबे कुचले लोग हैं उनके साथ आगे जुल्म जाति नहीं होनी चाहिए। और जिन्होंने भी हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट की हत्या किया उनको ऐसी कड़ी सजा सरकार दे। यदि आप नहीं है तो इस मामले को सीबीआई से को रेफर करें। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं पुनः इनके परिवार को, जो स्टेट के प्रेसिडेंट अब नहीं रहे, उनके परिवार को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी उनके साथ है,
हर सुख दुख की घड़ी में हम उनका पूरा साथ देंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய பின் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி தேசிய தலைவர் மாயாவதி உரையாற்றினார். அப்போது பேசிய அவர், உண்மை கொலை குற்றவாளிகளை இன்னும் பிடிபடவில்லை என்றும் விரைந்து கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் தெரிவித்திருந்தார். மேலும் அவரது மறைவு செய்தி கேட்டு மிகவும் வருத்தமடைந்ததாகவும் தெரிவித்திருந்தார். முன்னதாக அவரது குடும்பத்தினரை சந்தித்து ஆறுதல் கூறியிருந்தார் மாயாவதி. பின்னர் ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய பின் மாயாவதி உரையாற்றினார். அப்போது பேசிய அவர், உண்மையான கொலை குற்றவாளிகள் இன்னும் பிடிபடவில்லை என்றும் விரைந்து கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் தெரிவித்திருந்தார். மேலும் அவரது மறைவு செய்தி கேட்டு மிகவும் வருத்தமடைந்ததாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.